جنوبی پنجاب میں بارش اور سیلاب نے قیامت ڈھا دی۔ ڈی جی خان راجن پور کوہ سلیمان سمیت دیگر علاقوں میں تباہ کن سیلابی ریلوں میں گھر سامان فصلیں سب کچھ بہہ گیا۔ لوگوں کے گھر مسمار مکین بیار و مددگار۔ سیلابی ریلوں میں اسکول بھی تباہ ہو گئے۔ جنوبی پنجاب کا بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ ٹرانسپورٹرز اور مسافر پھنس کر رہ گئے۔ ٹرینوں کا شیڈول بھی متاثر۔ ریلوں سے مزید نقصان کا خدشہ، جبکہ حکومتی امداد نہ ہونے کے برابر۔ کوٹ مٹھن، قصبہ ونگ اور موضع مچا دی۔ ہزاروں ایکڑ کپاس کی فصل کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کے گھر بھی پانی کی نظر ہو گئے۔ کوہی کے پانی کی بے رحم موجوں نے کوٹ مٹھن کے درجنوں دیہات متاثر کر کے غریب کے سر سے چھت بھی چھین لی۔ کچے مکانوں میں مشکل سے گزر بسر کرنے والے مکینوں کو سیلابی پانی کی آفت نے گھیر لیا۔ قصبہ ونگ کے سینکڑوں علاقوں سمیت موضع بروس آباد، بستی رحمشاہ اور بستی شکانی کے سینکڑوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ نکے نکے بچے رول گئے نا، اسا کنے کوئی چیز نہیں ہے ٹائم تے۔ اسا غریب رول گئے، سر کپڑے کا شکانی بوک نو سڑتے پہ دھوپ دے پیوں جے کھٹڑے اڈی بیٹھوں، کوئی چیز کا نہیں سر ہی ٹائم تے۔ اسا نکلے بچے رول گئے نا۔ سیلاب نے قیامت ڈھائی تو غریب سڑکوں پر آ گئے۔ سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے سیلاب زدگان کے لیے کوئی مناسب انتظامات نہ کیے جا سکے، جس سے لوگوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ روہی کی ٹیم متاثرین کے پاس پہنچی تو سیلاب متاثرین پھٹ پڑے۔ کافی سارا نقصان تھی گئے، زمین فصلاں مال بال دا سارا نقصان تھی گئے۔ کچا دیواراں پکیاں دیواراں سارے ڈہ گئے۔ اساں نے کھاون جو کہ پیسے کہنی کتھوں نو پیسے کھاؤں۔ رود کوہی کے پانی نے لاکھوں گھروں کو متاثر کیا تو لوگ بے بسی کی تصویر بن گئے۔ کیمرامین ریاض مستوئی کے ساتھ افضل فریدی، روہی، کوٹ مٹھن۔ جامپور میں رود کوہی کا سیلاب بدستور تباہیاں مچا کے آگے کے علاقوں کی جانب رواں دواں ہے۔ تل شمالی کی بستی منہاس سمیت دیگر بستیاں رود کوہی کا سیلاب بہا لے گیا۔ رود کوہی کے سیلاب سے طیب ڈرین میں شگاف پڑ گیا۔ شگاف پڑنے سے تال شمالی کی بستی ملہناز تباہ ہو گئی۔ متاثرین بغیر راشن اور پانی کے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بچوں کے لیے دودھ، دوائیں تک میسر نہیں۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت نے کوئی مدد نہیں کی۔ جو پکا پکایا کھانا مخیر حضرات فراہم کرتے ہیں وہ بھی ناکافی ہوتا ہے۔ شیکا نہیں ملتی پی، بس میں چاول ڈھیر تھوڑے آلو تو نے، باقی جہی مکان تھوڑے سامنے اٹھائے گئے، نکے نکے بچے نہ کوئی کھانا پیمن کی کشے نہ کچھ لٹتے ہوئے پکڑین سے توم آئے پکڑے گھیلین سے اس وقت سامنے کھڑن سے۔ سیلاب سے متاثرہ نوجوان کا کہنا تھا کہ ہمارے 90% علاقہ تباہ ہو گیا۔ سیلاب ہماری فصلیں، گھر، مال، مویشی سب بہا کے لے گیا، لیکن ہماری مدد کو ریسکیو کے علاوہ کوئی نہیں پہنچا۔ تقریباً 90% سارے گھر رہ گئے، سامان کوئی پتہ کہ نہیں، صرف اصا اپنی جان کی حفاظت بچاتے ایسا صرف نہریں تے چڑھ گئے، صرف روڈ دے کوئی حکومتی نمائندہ کہ نہیں ہے اتنا، صرف ایک ریسکیو کے علاوہ طاہر صاحب کا شکریہ ادا کرنا، پوری بستی طرف تے میں شکریہ ادا کرنا۔ سیلاب متاثرہ شخص نے مایوسی میں بتایا کہ نہ تو کھانا ہے نہ پانی، کھلے آسمان تلے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بچے بیمار پڑے ہوئے ہیں لیکن حکومت ہماری امداد نہیں کر رہی۔ اسا کو کوئی امداد کا نہیں ملی، نہ کوئی کشا۔ سارے بال بیمار ہیں، انہیں کو نہ نہیں سکدو نہ کشا کھٹنے دے پین تھے۔ سا کو گولی نہیں ملتی ہے، کو گولی ملے۔ طیب ڈرین میں شگاف پڑنے سے بستی ملنہاس، بستی امدانی، رنگے والا، بستی جوگیانی، بستی خلیلانی، بستی محمد علی سمیت متعدد بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ دھان اور کپاس کی فصل تباہ ہو گئی۔ چہرے پر مایوسی، آنکھوں میں اداسی، یہ ہے بستی ملنہاس تل شمالی کا حال۔ لوگ جو ہے اس وقت قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جن کے پاس نہ کچھ کھانے کو ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی غذا ہے۔ اب لوگوں کا مطالبہ ہے مہربانی کر کے حکومت اب تو ان پر رحم کرے، ان کی داد رسی کرے۔ ساتھ کیمرامین کے ساتھ جاوید اقبال، روہی، جامپور۔ ڈی جی خان میں سیلاب نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ بستیوں میں پانی جمع ہونے کے باعث متعدد شہری بے گھر ہو گئے۔ ڈیرہ غازی خان میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ بستیوں میں پانی جمع ہونے کے باعث متعدد شہری بے گھر ہو گئے۔ شہری سڑک کنارے خیمے لگا کر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ سیلاب متاثرین کا کہنا ہے امدادی سامان ان تک نہیں پہنچ رہا، شدید دشواری کا سامنا ہے۔ سیلاب متاثرین کا کہنا تھا گھر بار، فصلیں اور مال مویشی سب کچھ سیلابی پانی کی نظر ہو گئے۔ سیلاب کے باعث خیموں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ بچے بھی کئی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ متاثرین کا کہنا تھا حکومت نظر ثانی کرے اور انہیں ان کے مکانات تعمیر کروا کر دیے جائیں۔ کیمرامین وقار الحسن کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔
दरियाई सिंध में पानी के मुसलसल इजाफे के बायस नशेबी इलाकों में दरियाई पानी का उतार चढ़ाव जारी है। मियावाली में चश्मा बराज के मकाम से 4.5 लाख क्यूसिक का रेला गुजरा, जबकि उसी पर अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। दरियाई सिंध में पानी के मुसलसल इजाफे के बायस नशेबी इलाकों में दरियाई पानी फैलता जा रहा है। दरियाई सिंध के मशरक में डेगाना के मकाम पर पानी आबादी से 70 मीटर के फासले पर बह रहा है, जो कि खतरे की घंटी है, जबकि मगरिब के एतराफ में पानी ने कच्चा के इलाके में तबाही मचा दी है। शहरी पानी की तेज रफ्तार देखकर खौफ और हिरास में मुब्तला हैं। 4.5 लाख का रेला यहाँ से गुजर रहा है और हमें बहुत खौफ आ रहा है, क्योंकि दरिया के किनारे के साथ सड़क भी है और इतना शोर शराब हो रहा है कि हम तो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं कि अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह खैर करे जी। गुजर रहा है और हमारा जो इलाका है ना, तो वो पानी की ज़द में है, तो यही उम्मीद करते हैं कि ये बाखैरियत जो है ना यहाँ से गुजर जाए। अगर पानी की आमद में इजाफा होता है तो अल्लू वाली, दुआबा, ढिंगाना, कलूरकोट और कच्चा के कई इलाका जात शदीद मुतासिर हो सकते हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियावाली। जनूबी पंजाब तबाही और बर्बादी की दास्तानें रकम करने लगा। सैलाब, जमीनी रास्ते मुनक़ता हो गए। मुल्तान से बलोचिस्तान, कोटमिठन, राजनपुर, डीजी खान और फोर्ट मनरो तक के जमीनी रास्ते बंद हो गए। बिलखते, सिसकते और अपने प्यारों के हमरा अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी सैलाबी रेले में बहते देखते ये हैं मनासिर जनूबी पंजाब के, जहां सैलाबी तबाहकारियों ने जमीनी रास्ते भी मुनक़ता कर दिए, जिसके बायस मुल्तान से बलोचिस्तान, कोटमिठन, राजनपुर, डेरा गाजी खान और फोर्ट मनरो के रास्ते बंद होने पर मुसाफिरों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स को भी मुश्किलात का सामना है। फोर्ट मनरो बंद है, इसी तरह राजनपुर, फाजलपुर सारा बंद है। अगर कोई गाड़ियां वहां पर ट्रैवलिंग के लिए, नकल मकानी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए अगर कोशिश करने चाहते भी हैं तो उनका हुआ हालात ये कि उनकी गाड़ियों के इंजन में पानी वगैरह चला गया, इंजन सीज हो गए हैं, जिससे ट्रांसपोर्टर बहुत ज्यादा परेशान है। चेयरमैन जनरल बस स्टैंड एसोसिएशन राना असगर ने रोही से खसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि मुल्तान से जहां तक जमीनी रास्ते बहाल हैं, ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया है ताकि सैलाब ज़दगान की ज्यादा से ज्यादा सामान पहुंचाकर मदद की जा सके। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन ताजरा जनरल बस स्टैंड के फोरम से हमने कल 2 ट्रक खुराक के वहाँ भेजे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नुमाइंदे वहाँ पर अभी मौजूद हैं। अभी तक हमने वहाँ पर बोट, अपना कश्ती वहाँ पर हायर की है और हम उन मुकाम पर पहुंचा रहे हैं खुराक जहाँ पर कोई नहीं पहुंचा सका। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि इस दुख की घड़ी में मुखैर हजरात समेत हर पाकिस्तानी को सैलाब मुतासरा बहन भाइयों की ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। खानपुर चाचरा शरीफ के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। उसी पर आमिर सुहेल की रिपोर्ट देखिए। खानपुर चाचरा शरीफ के मुकाम पर दरियाई सिंध में सैलाबी रेला 6 लाख क्यूसिक से बढ़ गया। दरियाई इलाकों में कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कमिश्नर बहावलपुर जहांगीर अनवर ने दरियाई इलाकों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर सईद मूसा रजा और असिस्टेंट कमिश्नर इल्मास साकिब ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर का कहना था कि सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तमाम महकमों की टीमें दरियाई इलाकों पर मौजूद हैं। दरियाई बस्तियों में लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया है। शहरी इलाकों को नुकसान नहीं हुआ। दरियाई इलाकों में सैलाब मुतासरीन की फसलों को नुकसान हुआ है। 6,80,000 भी चंद दिन पहले भी यहाँ से डिप्टी कमिश्नर की टीम ने और चीफ इंजीनियर साहब की टीम ने गुजारा है यहाँ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी नुकसान के बगैर। लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न था, जो मिंचन बंद के साथ आबादी है और जो हमारी अपने एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन 3 लाख आबादी है, वो जो है ज़रा पानी बढ़ेगा। जैसे आपके इल्म में भी है कि चश्मा के मुकाम पे और कालाबा के मुकाम पे जो काबुल का दरिया है उसमें 7 लाख क्यूसेक आया हुआ है। दरियाई सिंध में सैलाबी पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बायस इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। कैमरा टीम के साथ आमिर सुहेल, रोही न्यूज़, खानपुर। कमिश्नर बहावलपुर जहांगीर अनवर का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरे का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कमिश्नर बहावलपुर जहांगीर अनवर ने रोही को बताया कि बहावलपुर डिवीजन में सैलाबी सूरत हाल इतनी संगीन नहीं है। बहावलपुर में उशरीफ और रहीम यार खां में चाचड़ा शरीफ सैलाबी पानी से मुतासिर होते हैं। 2 लाख से ज्यादा अफराद और उनके जानवर बहावलपुर डिवीजन में सैलाबी सूरत हाल से मुतासिर हुए हैं। 2 लाख से ज्यादा अफराद और उनके जानवर बहावलपुर डिवीजन में सैलाबी सूरत हाल से मुतासिर हुए हैं। उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। कि हमें सतलज, चनाब और इंडस ये तीनों दरियाओं से गिला रहता है सैलाब के हवाले से। लेकिन चूंकि आपको जैसे इल्म है कि इरसा के मुताबिक जब ये एग्रीमेंट हुआ था तो सतलज, ब्यास और रावी जो है वो इंडिया को चले गए थे और बाकी 3 दरिया जो है हमारे पास हैं। अब ये सतलज में तो ऐसा कोई हमारे चैलेंज नहीं है, जो बिल्कुल बहावलपुर शहर के करीब से गुजरता है। लेकिन जो चनाब है, चनाब हमारा आके मिलता है यहाँ पे हेड पंजनत पे, और हेड पंजनत का जो बैक फ्लो है वो हमें डिस्टर्ब करता है हमेशा से।
कमिश्नर बहावलपुर का कहना था कि बहावलपुर डिवीजन में दरिया के इर्द गिर्द बस्तियों की आबादियों को खाली करवा चुके हैं। जो लोग रह गए उन्हें भी महफूज मुकामात पर पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं। मिठन कोट के पास आके चनाब और इंडस दोनों मिलते हैं, जिसकी वजह से पानी का फैलाव बढ़ जाता है और आवाम की जान को खतरा होता है। अब आखिरी चीज़ ये बताऊं आपको कि अभी जो हिल टॉरेंट्स हैं कोहे सलमान के, वहाँ पे फोरकास्ट भी है कि अगले 2-3 दिनों में मजीद बारिशों का इम्कान है और वो पानी इंडस में शामिल होता है और इंडस से फिर वो तौनसा डाउन स्ट्रीम हमें डिस्टर्ब करता है और सिंध में चला जाता है। कमिश्नर बहावलपुर ने हेड पंजनद और रहीम यार खां के इलाकों में सैलाबी पानी की सूरत हाल का जायजा लेकर मुतल्लिका महकमा जात को अपने फराइज की अदायगी के फौरी अहकामात जारी किए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। डीजी खान में दरियाए सिंध बिफरने लगा, इंतजामिया ने करीबी बस्तियों को खाली करने के अहकामात जारी कर दिए। उसी पर आसिर इशफाक की रिपोर्ट देखिए। सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। रोद कोहियों के बाद दरियाए सिंध बिफरने लगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेशगोई हुई है। इंतजामिया की जानिब से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। करीबी बस्तियों को खाली करने के ऐलानात कर दिए गए। आज के डेज में हमने 150 जो है ना पेशेंट को देखा है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है तमाम वाईडीए डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर्स हैं, खुदा रहा इन लोगों के हेल्प के लिए आए। यहाँ पे मेडिकल रिलीफ कैंप लगा दिए है हमने, लोगों को खैमे दिए हैं मामूरी वाली साइड पे। जहाँ जहाँ हमें निशानदेही हो रही है हम वहाँ पहुँच रहे हैं। अब तक हमने 190 प्लस लोगों को यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत मुहैया की है। अब एवोकेशन हमने 20 लोगों को यहाँ से एवोकेट किया है। दरिया सिंध में 5 लाख से जायद क्यूसेक पानी का रेला गुजरने से करीबी बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। मोजा हाजी गाजी शर्की में पानी दाखिल होने के बावजूद मकीन घर बार छोड़ने को तैयार नहीं है। चारों अतराफ पानी के बावजूद फैमिलीज घरों में मुकीम हैं। मकीनों के मुताबिक उन्हें इंतजामिया की जानिब से खैमे फराम नहीं किए गए। वो घर से बाहर निकल कर कहाँ जाएं? ये नहीं मिले, तंबू नहीं मिले, उनकी वजह से शिफ्ट नहीं थी पर तंबू मेल वजह ना था ही तो बाहर ही निकल आवे सू। बाकी जरा सब बजा जिम्मेदारी वो था और घेन के अंदर ला जाले सको चार मेहरबानी है। दरियाई बहाव के पेश नजर रेस्क्यू 1122 और दीगर फलाही तंजीमों की जानिब से मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। सैलाब मुतासरीन खुद को तनहा हरगिज न समझे। मुल्तानी भी मुश्किल घड़ी में सैलाब ज़दा बहन भाइयों की मदद के लिए मैदान में आ गए। मुल्तान में भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए इकदाम जारी। सिंध बलोचिस्तान समेत जनूबी पंजाब में जहां सैलाब ने तबाही मचा रखी है, वहीं इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला भी जारी है। इस सिलसिले में शहरियों की जानिब से चुंगी नंबर 6 पर 5 रोजा इमदादी कैंप लगाया गया है। कैंप इंतजामिया का कहना था कि इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता है कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बाहर निकलें। कैंप का आज चौथा दिन है और इस कैंप में लोग भी दिल खोल कर हमारी मदद कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा इस वक्त राजनपुर और डीजी खां तौनसा में कितने बुरे हालात है। लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा, पानी तो डूबे हुए पानी में, लेकिन भूखे भी मर रहे हैं। तो उसने हमारे जज्बे को इतना उजागर किया और हमें मजबूर किया कि हम सड़कों पर आकर लोगों से इमदाद मांगे और हमारे लोग हमें बहुत इमदाद दे भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शहरी नकद पैसे, बिस्तर, कपड़े और खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया अतिया कर रहे हैं। कैंप में जमा होने वाली तमाम चीजें बहफाजत सैलाब मुतासरीन तक पहुँचाई जाएंगी। लोग जितना हो सके वो इमदादी कैंप में सामान दें और पैसे दें, और मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि एक दिन की सैलरी जो भी है वो डोनेट की जाए ताकि उनकी अच्छी खासी मदद की जा सके। कैंप इंतजामिया ने मुखय्यर हजरात से भी सैलाब ज़दगान बहन भाइयों की इमदाद के लिए अपील की है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। सैलाब ज़दगान को मुश्किल घड़ी में देखकर स्कूल के बच्चे भी पीछे न रहे। नन्हे बच्चों ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फंड्स इकट्ठे किए। रहीम यार खान में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए स्कूल के नन्हे बच्चे भी पेश। बच्चों ने अपनी मदद आप के तहत फंड्स इकट्ठे किए। हर क्लास में सब ने इस कार्य खैर में हिस्सा दिया। इस मौके पर बच्चों का जज्बा भी दीदनी था। उनका कहना था कि उन्होंने इमदादी काम अपने स्कूल से शुरू किया, अब हर स्कूल में जाकर फंड इकट्ठा करके सैलाब मुतासरीन की मदद करेंगे। और हम सब ये बात भी बखूबी जानते हैं कि हमारे मुल्क की अक्सरियत ज़राअत के पेशे से मुंसलिक है। लोगों की पकी हुई लहलहाती फसलें तबाह हो चुकी हैं। हमारे स्कूल ने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसके जरिए हमारे एहतियात बराह रास्त जो है सैलाब ज़दगान तक पहुंच रहे हैं। काफ़ी सारे मवेशी बह गए हैं और फसलें बर्बाद हो गई हैं। इस वजह से हम सारे दोस्तों ने फैसला किया है कि हम फंड जमा करें और जो अपने साथियों को दें। फंड जमा करने होंगे जिसकी वजह से हमें सैलाब अरकान के लिए हमें मदद करनी है, जिनके घर बहुत से घर डूब चुके हैं, जिनके मवेशी भी डूब चुके हैं। बहुत सर ने कहा था कि सारे कम से कम 10 रुपये तैनो फीस दे। हम सारे ने बाकी जितने हमारे हम दे सकते थे हमने दिए। नन्हे तलबा की नेक जज्बे के साथ मदद के लिए कोशिशें करना इस बात का शिआर है कि कोई भी मुश्किल हो पूरी कौम अपने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए तैयार है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान।